वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदैः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते. So let me have the pleasure of again welcoming all of you to today's meeting. We had a wonderful session yesterday and it was a beautiful experience. Sir, am I audible? Yes, ma'am. You're audible. So as we go to our next day, I would just like to recapitulate from our Shaping Leaders with Conviction roadmap. Firstly, yesterday we saw that we are here to gain exposure to an inter-domain perspective of Mulya Pravah 2.0. Also, secondly, we hope to find resonant insights that we can incorporate into our knowledge transactions or into our teachings when we teach the students. Thirdly, we are preparing our students with the skills and values needed for the rapidly changing world of the 21st century. And in this landscape, there is no more silos. Intersections of domains are what our students will encounter. This FTP provides an opportunity to understand what we are preparing our students for. Fourthly, in our value education curriculum, we aim to provide students with a framework to work with values. We are providing a framework during our course. Their practical learning involves acquiring the best skills and values from every course, every lecture, from every faculty member who teaches them. So with this, I think we should not, delay our sessions. We should go to our sessions right away. Our interesting session for today is Joy and Melody, Inspiring Virtues, which is our upcoming session. And in this session, let me check if Madam is here. Shivalika ma'am and Sir Aryabish sir, are you here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So first we have Madam Shivalika, a Hindustani vocal music expert. She holds a master's degree and that is a Prabhakar in music and is a gold medalist from MG Kashi Vidyapit during her bachelor's studies. Joining her is our Western music educator, Mr. Umesh Bist, sir, who has been teaching since 2019 and serving as a vocal coach at the Asian Academy of Film and Television for the past 2 years. Interestingly, as a late bloomer in music, he strongly believes in the power of education over innate talent. He has won 4 scholarships at Delhi School of Music and served as the assistant conductor of Delhi Chamber Choir. His notable performances include appearances with Vienna University
Philharmonic, the Latvian Embassy Choir, the Nimrana Music Foundation, and so on. His deep appreciation for music's power to evoke emotion and serve as a cathartic outlet has provided him with valuable insights benefiting both musicians and lay people alike. Now, I would request our music inspirers, our music teams, to take over and take the center, and you can start your session. Hello, everyone. I'm Umesh, and here with me is Shivalika ma'am. Is with a mixed mode of communication in both Hindi and English. Hello, sir. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Please, ma'am, let me know if everyone is okay with a mixed mode of communication in both Hindi and English. Okay. So let us proceed further. I would request all of you to please join us in having a very interactive session. So please, as much as possible, अपने mics use कीजिएगा, because music में there is and there cannot be a one-way communication. तो highly requested कि आप हमारे साथ थोड़ी सी बातचीत करेंगे, थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे. It will be very fruitful. Okay, so let us begin. So the topic is joy and melody inspiring virtues. और virtues इससे पहले कि आए, मैं joy के बारे में बात करना चाहूँगा, which is something that people associate with music. But the question is कि क्या आप melody के साथ जब correlate करने की कोशिश करेंगे कि joy is a prerequisite to enjoyment, या music की वजह से joy आती है? If anyone would like to participate, please. क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई पा रही है? प्लीज कोई बता सकते? Yes, sir, your voice is okay. Is it breaking? Now it is I clear, see. sir. Okay. So I wanted to start by talking about joy. कि आपको क्या लगता है कि म्यूजिक सुन के हमें joy, या इंसान के अंदर joy पहले से present होनी चाहिए so that they are able to appreciate the music? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें फील होना चाहिए कि हमें हैप्पी रहना चाहिए. अगर हैप्पी रहने के लिए फिर म्यूजिक सुनना चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए. हाँ. ओके. और कोई ओपिनियंस इस चीज पे, अगर कोई कॉन्ट्ररी में बिलीव करता हो? So let us move ahead. When we talk about music, music is very personal. जिसका मतलब ये है कि सब लोगों के पास अपने अपने यूनिक म्यूजिकल टेस्ट्स होंगे एंड प्रेफरेंसेस होंगी. सब लोग डिफरेंट तरीके का म्यूजिक सुनते होंगे. मैं वेस्टर्न म्यूजिक सुनता हूँ प्राइमरीली. कोशिश करता हूँ जितनी ज्यादा हो सके उतना ज्यादा डिफरेंट म्यूजिक सुनने का. शिवालिका मैम, आप किस तरीके का म्यूजिक सुनते हैं? मुझे तो सिर्फ हिंदुस्तानी ही म्यूजिक बहुत ज़्यादा इसके प्रति रुचि भी रखती हूँ. वेस्टर्न मैंने बहुत कोशिश की, बट मेरा लगाव वहाँ नहीं गया. बट मुझे एक्सप्लोर करना है कि म्यूजिक ऑब्वियस है, म्यूजिक छोटा-सा नहीं है, इट्स समुद्र जिसको कह सकते हैं हम, है ना? तो इधर कर्नाटक संगीत भी है, पाश्चात्य संगीत भी है, शास्त्रीय संगीत भी है. सो बहुत ही लेवल्स हैं, बहुत ही एक बोल सकते हैं गहरा समुद्र है एक म्यूजिक, है ना? तो लेकिन मुझे पर्सनली मैं शास्त्रीय संगीत ही पसंद करती हूँ. ओके. कोई यहाँ पे आप सब टीचर्स, फैकल्टीज और जो सब यहाँ पे हमारे समक्ष प्रेजेंट हैं, आप में से कोई रैप म्यूजिक सुनता है क्या? स्पेशली देसी हिप हॉप? सर, आपने पहले एक क्वेश्चन पूछा था जॉय और म्यूजिक के बारे में, तो जी. मुझे इसके बारे में ये बोलना था कि जब हम बहुत खुश है ना, अपने आप से म्यूजिक निकल आता है. सिर्फ हम ही नहीं, मतलब मैंने देखा बहुत लोग जब खुश होते हैं तो अपने आप गाने लगते हैं.
बिल्कुल। म्यूजिक गिव्स राइज टू जॉय, और जॉय म्यूजिक गा के भी और भी अच्छा लगता है, दोनों भी होता है सर। और मुझे लगता है कि जब आप बहुत खुश होते हैं या तो किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड रहते हैं तो खुद ही वो हमिंग ही करेंगे, बट वो आपके अंदर से एक निकलेगा। लाइक कोई सॉन्ग भी नहीं हो सकता है, बट लाइक कुछ भी एक हमिंग आप करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लाइक अंदर के इमोशन को लाइक वो करने के लिए। इस बार तो बेसिकली म्यूजिक बहुत पर्सनल टेस्ट से अफेक्ट होता है। हर कोई इंसान अलग अलग तरीके का म्यूजिक सुन रहा है। किसी को जैज पसंद है, किसी को बीबॉप पसंद है, किसी को हिप हॉप पसंद है, कोई बॉलीवुड म्यूजिक सुनता है, पॉप सुन रहा है, कोई रॉक सुन रहा है। तो इतने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के म्यूजिक हमारे पास हैं, और हर तरीके का म्यूजिक चाहे वो कितना भी डिफरेंट क्यों ना हो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, इट स्टिल इज एबल टू इन्वोक एन इमोशन। तो वो इमोशन जो है हमारे अंदर, वो म्यूजिक बहुत बड़ी पावर समझा जा सकता है। या ये बोलें कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ साइको अकूस्टिक फिनोमिना। तो साउंड्स हैं जिसमें अगेन जो हमारे को अफेक्ट कर रही हैं, हमारे इमोशंस को अफेक्ट कर रही हैं, हमारे मस्तिष्क को अफेक्ट कर रही हैं। तो दिस वाज समथिंग जो ग्रीक फिलोसोफर्स एक्चुअली काफी पहले से अम, जानते थे, और उसके बारे में इन्होंने टिप्पणी भी की थी दैट जो है, डिपेंडिंग ऑन द स्टाइल ऑफ म्यूजिक दैट यू लिसन टू, इट invokes an ethos inside the person, which was basically a state of being, a state of having like a moral stance, जिसको आप आचरण बोल सकते हैं सिंपली। तो म्यूजिक लोगों के आचरण में बदलाव लाता था, ये ग्रीक फिलोसोफर्स का मानना था, पर्टिकुलरली एरिस्टोटल का। और सिमिलरली जैसे जैसा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भरत ने नाट्यशास्त्र में अपने कहा है रस और भाव, उन्होंने इसका प्रदर्शन किया है। और वो बताते हैं कि रस और भाव से मिलकर ही संगीत को आगे ले जाया जा सकता है। भाव में ये भी हो सकता है, श्रृंगार रस भी हो सकते हैं, करुण रस भी हो सकते हैं, और और भी प्रकार के जो रस हैं उसमें आते हैं। वैराग्य हो वैराग्य, गया। वैराग्य, एग्जैक्टली, वैराग्य भी होता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। सा सारे गा म पदा नी पा सा धा नी पा। तो ये एक दरबारी का हो गया। आप इसमें देखेंगे ये थोड़ा गंभीर प्रकृति का राग आपको दिखाई देगा। जैसा कि कौन गाँव की हो नारी तुम, कौन गाँव की हो नारी तुम, देखी ना तुम्हारी सूरत कबहू, या ब्रजधाम कौन गाँव की हो नारी तुम। तो जैसा शिवालिका मैम ने हमें थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया, अगर मैं वेस्टर्न के लिए आपको एक छोटा सा कुछ पीस गा के सुनाऊं सेशन, बिकॉज लोग बताएंगे एक्शन ब्रांचेस हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो कैन वी हैव दिस अ लिटिल क्विज, जहाँ पे आई विल सिंग अ लिटिल पीस एंड प्लीज ट्राई टू टेल मी व्हाट डू यू फील कि इसका क्या इमोशन होता होगा। Names and shepherds come away, come away. Names and shepherds come away, come away. In the grove, let's sport and play. तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें आपको किस तरीके का इमोशन फील हो रहा होगा? Anyone who would like to chime in? जैसे कि हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। दरबारी एक गंभीर प्रकृति का राग है,
इसी का एक चंचल प्रकृति का भी मैं आपको सुनाना चाहूंगी। So, third वाला I wanted to see थोड़ा लाइट, ऐसे लग रहा था कि थोड़ा लाइट मूड में हम जैसे हमिंग करते हैं, लाइट मूड या जॉयस मूड, उस तरह का कुछ लग रहा था. Yes, so it did feel very light and very like playful. Yeah. And that was sort of the intention of the composer as well, कि वो ये दिखाना चाह रहा है कि nymphs and in the fields, or it is a very relaxed serial, like sort of laid back, and so the music helps portray that image of the world. अब जैसा कि मैंने बताया, दरबारी एक गंभीर प्रकृति का राग है। इसी का मैं आपको बताना चाहूंगी। एक थोड़ा चंचल Yes. So we were talking about, sorry for the delays, there was some network problem. So हम बात कर रहे थे म्यूजिक एंड एथोस की, हाउ म्यूजिक इज एबल टू इन्वोक सर्टेन इमोशंस विद इन अस, और किस तरीके से वो इमोशंस हमारे अंदर वैल्यू. तो if you could, शिवालिका मैम was just कौन गाव की नारी तुम। हेलो, और इसमें हम कर सकते हैं एक अड़ाना, जिस दरबारी का ही एक चंचल प्रकृति का है। रे सा रे नी सा प नी म प सा ग ग रे मो रे त ग ग रे मोरी भरन नाही देत। ओके. तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपको इसमें किस तरीके के इमोशंस फील हुए? कोई अगर जॉइन इन करना चाहेगा, बताना चाहेगा कि इस म्यूजिकल सैंपल में आपको क्या इमोशंस फील हुए, या मे बी नहीं हुए, या इट माइट बी समथिंग डिफरेंट टू व्हाट अदर्स माइट थिंक, या जो मैम को लग रहा है कि जिस चंचल प्रकृति का राग है, अगर आपको लगता है कि नहीं था, तो आपको क्या लगा? कोई अगर बताना चाहे तो? सर थोड़ा सा और कंटिन्यू हो सकता है, बीच में ब्रेक हुआ ना तो उतना रजिस्टर नहीं हुआ होगा, थोड़ा I see, एक I see. बार मैम रिपीट कर सकते हैं? Sure. जी। तो just to recap, we were talking about music and ethos, and किस तरीके से म्यूजिक certain emotions हमारे अंदर उजागर करने की ability रखता है, and so we have different musical samples, and I was wanting for you to chime in with what you think कि आपको emotion feel हुआ इस particular music को सुन के. तो मैम एक बार आप अगर गाएंगे तो. जैसा कि हम बात कर रहे थे कि दरबारी एक गंभीर प्रकृति का राग है। कौन गाव की हो नारी तुम, देखी ना तुम्हारी सूरत बहू, या ब्रजधाम कौन गाव की हो नारी तुम। ये दरबारी था। अब इसी में अड़ाना, जो कि दरबारी का ही एक चंचल प्रकृति का राग है। शे सा रे नी सा प नी म प सा ग ग रे मोरी भरन नाही देत, ग ग रे मोरी भरन नाही देता। तो जैसा मैम ने अभी बताया कि ये हमारे पास थोड़ा चंचल प्रकृति का राग था, किसी को कोई ऐसा जिसको ये चंचलता नहीं लगी हो, या कुछ और इमोशन फील हुआ हो? अ, और मैं साथ ही साथ बताना चाहूंगी कि जब हम दरबारी गा रहे थे तो उसके स्वर जो लग रहे थे बिल्कुल ही गंभीर और बहुत ही ठहराव के साथ, और जब मैंने अड़ाना गाया तो उसके स्वर एकदम उछलते हुए, लाइक बिल्कुल स्थिर नहीं, थोड़ा उछलते हुए ऐसे लग रहे, तो इस वजह से हम उसको चंचल प्रकृति का कह सकते हैं।
ऐसे ही अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल गाऊं वेस्टर्न में, सो दिस इज क्वाइट ओल्ड. आई think it dates back to approximately 11th century. So, Utqueant laxis resonare fibris mira gestoru famulituorum solve polluti labireat sancte Johannes. तो आपको इसमें मतलब किस टाइप का इमोशन फील हो रहा है, किस टाइप का आपको लग रहा है कि इमोशन आ रहा होगा? मुझे लगता है कि इसमें जैसा कि सर आपने गाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अपनी बातों को कह रहे हैं, बट बहुत ही सस्पेंस भी है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सस्पेंस भी, वो अपने सस्पेंस खोल रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने कुछ राज है वो अपने बातों के थ्रू, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ. ये सुन के मुझे ऐसा लगा। Okay. जी So suspense is sort of like a descriptor. अगर मैं इमोशन की बात करूं तो आपको इमोशन किस तरीके का फील हुआ? लिटिल सैड। ओके, थोड़ा सा सैड. हाँ क्या आपको ऐसा लगा कि इसमें रादर देन से कि हैप्पीनेस नहीं है, बट क्या ये बोल सकते हैं कि सीरियसनेस ज्यादा है? सीरियसनेस ज्यादा, यस यस। तो इस तरीके का म्यूजिक जनरली प्रेयर्स में यूज किया जाता था पहले. जो अर्ली मिडीवल एजेस में हमारे पास ग्रेगोरियन चांट्स थी जिनका मतलब जो ओरिजिनेट हुई, तो वो चर्चेस में यूज करी जाती थी मिडीवल टाइम्स में एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप. एंड देन वो अपने म्यूजिक को इसी तरीके से थोड़ा सा सिंपल और सीरियस रखते थे, बिकॉज देन वो ये बात समझते थे कि जो थोड़ा सा चंचलता है अगर म्यूजिक में आएगी तो देन वो एक्चुअली लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेगी फ्रॉम देयर ओरिजिनल गोल, जो कि उस टाइम था कि आप चर्च में आए हो तो आप वर्शिप करने ही आए होगे. तो वो चंचलता उस टाइम पे अवॉइड करते थे जस्ट टू प्रिजर्व द सीरियसनेस ऑफ वर्शिप. तो इस तरीके से उन्होंने म्यूजिक भी उस तरीके का चूज किया, जो कि देन लोगों को भी एक एरिया की तरफ सॉर्ट ऑफ ध्यान लगाने में हेल्प भी करता था. बिल्कुल। हम आप सबसे भी चाहेंगे कि आप सब भी अपने मूड्स बताइए कि आपको कैसा म्यूजिक पसंद है। मैं तो एक्चुअली ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि क्या आप में से कोई देसी हिप हॉप सुनता है या नहीं सुनता है, बिकॉज अगेन एज एन एजुकेटर आजकल के बच्चे वही सुन रहे हैं, विच इज अगेन कुड बी अ वेरी गुड पॉइंट फॉर यू टू कनेक्ट विद योर स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारा काम ये है कि हम वो गैप धीरे धीरे खत्म करते रहें. मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स एक्चुअली एंड अप ओपनिंग अप टू मी व्हेन दे डिस्कवर कि आई हैव सिमिलर टेस्ट्स to them, if not the same, but music has played a huge role in that kind of communication. And आप like believe नहीं कर पाएंगे कि स्टूडेंट्स सडनली कितना कंफर्टेबल हो जाते हैं व्हेन दे जस्ट फाइंड आउट कि अरे सर आप सीधे मौत को सुनते हो या आप बादशाह को सुनते हो. एंड इट कैन बी एनी वन, इट्स नॉट जस्ट हिप हॉप, बट हिप हॉप का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज दैट इज समथिंग जो आजकल चल रहा है. तो उसी तरीके से आर देयर एनी कंटेम्पररी मैं बहुत लाइट सेंस में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, बट लाइक लास्ट 10-20 इयर्स का म्यूजिक यहाँ पे कोई सुनता है या कंज्यूम करता है? डेफिनेटली सर, जब डांस वगैरह करने का मूड होता है तो तभी भी, और काफी बार हम लोग सुन लेते हैं. ओके, कुछ आर्टिस्ट अगर आप नाम लेना चाहें तो शिवालिका मैम, अगर आप बताना चाहेंगे कि हाँ मतलब आप किन नए आर्टिस्ट्स को सुनते हैं, कोई नए इमर्जिंग आर्टिस्ट्स जो आपको लगता है कि ज्यादा लोगों को अभी नहीं पता होगा? नहीं रैप में नहीं, बट इन जनरल कोई भी म्यूजिक. सर बताइए.
आई लव लता मंगेशकर सॉन्ग। हाँ, कुछ लाइक एक बहुत जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। लाइक कितना हाँ। अच्छा लग रहा है, लाइक बहुत एट द सेम टाइम मैं ये भी बोल सकता हूँ कि दिस माइट बी समथिंग जो आज के स्टूडेंट्स रिलेट नहीं कर पाएंगे, हाँ या वो एग्जैक्टली। बोलेंगे कि हम तो इस म्यूजिक को अब नहीं सुनते हैं या इतना नहीं सुनते हैं। मे बी कुछ यहाँ पे पॉपुलर नोशन बना हो, फॉर एग्जांपल लोग जैसे नेहा कक्कड़ की बात करते हैं, एग्जैक्टली। बट लोग कंज्यूम कर रहे हैं एट द सेम टाइम उस म्यूजिक को। Can you please unmute yourself? Priyanka Solanki. Priyanka Solanki. Please Yes, unmute good yourself. evening, ma'am. हाँ, प्लीज टेल आपको कौन सा हिप हॉप का सॉन्ग अच्छा लगता है, कौन से आर्टिस्ट या आपके फ्रेंड्स को? मैम अभी रिसेंटली तो जो वही बॉलीवुड के जो मिडल में सॉन्ग आए थे वो कोई भी जैसे कि बताओ जो याद आ रहा है आपको। ये एक ना सर वॉल्यूम कम कर, क्या पापा जग जाएगा, वो सुनने के बाद इतनी बार हमने उसको रिपीट किया, ओके मतलब ऐसे कुछ है जो एक बार सुने तो यस यस हंड्रेड मैम, टाइम्स यू आर वो राइट। गूंजता ही रहता है। के वर्डिंग्स और और लिरिक्स भी ऐसे होते हैं ना, तो जहाँ देखो वही सॉन्ग। कोई हाँ जैसे यही उम्र है कर ले, लाइक समथिंग हाँ ऐसा हाँ, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। और भी है अ, आजकल बहुत सारा म्यूजिक ऐसा है जो इनफैक्ट बॉलीवुड ने भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ के आ गया है। बहुत ज्यादा हिप हॉप का इंक्लूजन हो रहा है, हर मूवी सॉन्ग के अंदर एक ना एक रैपर आपको मिल जाएगा, और बहुत सारे कंटेम्पररी सिंगर्स आ रहे हैं जो सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं है, और डिफरेंट चीजों को भी, मतलब जैसे एल्बम सेल्स वगैरह और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स भी बहुत इमर्ज कर एग्जैक्टली, रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है सर कि जो पुराने सॉन्ग्स हैं उनका रीमेक करके वो उनमें रैप भी करते हैं, हाँ हाँ, है ना? बट वो तब सुनने में नहीं अच्छा लगता था सब। तब अगर आप पुराने सॉन्ग सभी उठा लेंगे तो आपको लगेगा कितना बोरिंग है, मतलब अगर बट उसी को आप थोड़ा न्यू वर्जन दे के अगर आप उसमें थोड़ा रैप ऐड कर लेंगे तो और साथ ही साथ आप पुराने गाने भी सुनेंगे और साथ ही साथ एंजॉय भी करेंगे रैप भी। बट अगर उसकी कह दिया जाए कि असलियत पता चला है कि पुरानी हाँ, गानों से ही लिया गया है, तो हालांकि लोग सुनते नहीं है, बट मुझे लगता है कि उन्हें सबको सुनना चाहिए और न्यू जनरेशन को तो बिल्कुल सुनना चाहिए। हाँ। इनफैक्ट आजकल हो सकता है कि बहुत सारी न्यू जनरेशन ऐसी है जो इनफैक्ट बॉलीवुड से भी थोड़ा-सा हटना शुरू हो गई है। एग्जैक्टली। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स के लिए जो प्लेबैक सिंगर्स नहीं हैं, जैसे अनुव जैन हो गया। ओके। जैसे अनुव जैन का आपने हम्म। वो हुस्न गाना सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ओके। तो उस तरीके से ऐसे आर्टिस्ट्स हैं जो सीधे एल्बम्स रिलीज़ कर रहे हैं। हम्म। अम तो आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो उन चीज़ों से आगे आ रहे हैं, सिर्फ बॉलीवुड में क्या रिलीज़ हो रहा है, वहाँ तक सीमित नहीं रह रहे हैं, एंड इन फैक्ट दे आर यूजिंग द इंटरनेट टू डिस्कवर मोर ऑफ व्हाट दे माइट लाइक, व्हिच आल्सो ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट कि म्यूजिक इज़ इन्हेरेंटली अ कल्चरल फिनोमेना। तो हमार हमार अंजना मैम, आपका माइक शायद अनम्यूटेड नहीं है ऐसा लगता है। There's a chat message. हाँ, देयर इज़ अ चैट मैसेज, रीजनल लैंग्वेज सॉन्ग्स टू, जो शिवालिका मैम आप मेरे को बता रहे थे एक दिन भोजपुरी म्यूजिक के बारे में। एग्जैक्टली। अगर हम भोजपुरी की बात करें, है ना? उसकी उनकी म्यूजिक्स आपको बहुत डांस करने पे मजबूर कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है। हालाँकि आप शब्दों पे ना जाइए क्योंकि शब्द पे जाएँगे तो फिर वो इट विल मेक सेंस बहुत अलग ही जाएगा हाँ, वो, हाँ, है हाँ। ना? लेकिन अगर आप उनके म्यूजिक को सुने तो मतलब पैर आपके थिरकना बंद नहीं हो सकते, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ऑल्दो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि
अब भोजपुरी की बात आ गई है तो उसमें शब्द ही पूरे मतलब आपको साफ-साफ ही बता दिए जाते हैं, लाइक उसमें ऐसे शब्द रहते हैं। वही चीज़ अगर बॉलीवुड में करें तो वो छुप जाता है थोड़ा, क्योंकि लगता है कि हाँ, बॉलीवुड ने गाया है तो ठीक है, हाँ, ओके, हाँ, हाँ। है ना? बट एक बायस है जो क्रिएट होता है हाँ, रीजनल एग्ज़ैक्टली। म्यूजिक के अगेंस्ट। हुँ, ये भी हुँ। एक चीज देखने को मिली है कि रीजनल म्यूजिक को थोड़ा सा बायस के साथ देखा जाता है, जैसे हरियाणवी म्यूजिक भी हो जी, गया। जी। और सर और मैं आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो हमारे 90s के म्यूज़िक थे, हम्म, ठीक है सर? उसमें सारी चीज़ें बता दी गई हैं, लाइक आपके सारे इमोशन, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें सारे उसमें इमोशंस बताए हैं, है ना? हम्म, लाइक आप अगर आप सिर दर्द का सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए, काहे घबराए, समथिंग समथिंग, आप समझ रहे हैं? हर चीज को उन्होंने रिलेट किया है, चाहे वो इमोशन हो, चाहे किसी भी अलग अलग सिचुएशंस के एग्जैक्टली बारे एग्जैक्टली में। वो सारे सिचुएशन मुझे लगता है कि 90s में सब उन्होंने कर दिया, हाँ, जो हाँ, कि आज की जनरेशन बस उन्हीं को देख के फॉलो कर रही है, हाँ, और बेहतर म्यूजिक बनाने का भी प्रयास कर रही हाँ। है वो। कुछ हाँ, कुछ मैंने ये देखा है कि रीजनल इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो धीरे धीरे इमर्ज हो रही हैं और मेन स्ट्रीम में आ रही हैं, इवन दो काफी ज्यादा प्रेजुडिस को झेल रही हैं स्टिल, बट वो काफी अनस्टॉपेबल हैं, जैसे कि भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री हो गई। हमारे पास साउथ में बहुत सारे गाने इमर्ज होके आते हैं जिन जो इनएविटेबली बॉलीवुड उनकी रीमेक बना देता है। जबकि एग्जैक्टली। ओरिजिनल वर्जन्स बहुत केसेस में देखा गया है कि लोग स्टिल प्रेफर करते हैं। इसका बहुत पुराना अगर एग्जांपल लिया जाए, जिस टाइम पे बॉम्बे रिलीज हुई थी, ओके। तो बॉम्बे वाज नॉट ओनली डब्ड बट उसके सारे के सारे गाने हिंदी में ट्रांसलेट करके देन गवाए गए थे। जैसे वो हो गया तू ही रे, अच्छा। तू ही रे। तो वो एक्चुअली इट वाज नॉट अ बॉलीवुड मेक, बट ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमेशा लोकल लैंग्वेज और वहाँ के कल्चर से आई हैं। राजस्थानी म्यूजिक, जैसा मैम ने कमेंट में भी लिखा है, केसरिया वाला हाँ, केसरिया बालम हो गया पधारो मारे देश। तो ये तो बहुत ही ज्यादा नोन एग्जांपल्स हैं, बट इसके अलावा ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो साइलेंटली अफेक्ट करते आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। बट लाइक बॉलीवुड कंपोजर्स और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जो हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ वेरी क्लेवर, बिकॉज वो अपने कान खुले रख रहे हैं हर जगह एंड दे आर टेकिंग इन इन्फ्लुएंस फ्रॉम एवरीवेयर और उसको वो बस अप्लाई कर रहे हैं। नॉट सेइंग कि दैट इज इनहेरेंटली बैड, विच इज समथिंग दैट विल गेट टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टॉक, कि इन जनरल हमारे कान जितने खुले रहे उतना अच्छा ही होगा। एग्जैक्टली। हाँ, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वेस्टर्न के कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं कि उनकी हिंदी में डब करके बॉलीवुड ने भी बहुत बहुत सारे गाने बनाए हैं। हाँ, कुछ कुछ तो एग्जैक्ट कॉपीज माने जा सकते हैं। जैसे अगर आप कंफर्टेबल हैं चैट में लिखने में तो आप चैट में लिख सकते हैं, अगर आप माइक अनम्यूट करके बोलना चाहें तो दैट वुड आल्सो बी ग्रेट। बट अगर मैं एक छोटा सा रशियन फोक सॉन्ग का एग्जांपल आपको गा के सुनाता हूँ, अगर आपको ये किसी बॉलीवुड सॉन्ग जैसा सुनाई दे तो प्लीज बताइएगा। Kalinka saduyagda malinka maya kalinka maya saduyagda malinka maya। तो अगर आपको इससे कोई सॉन्ग याद आया हो? यस, 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 सात खून नमक का नाइस, है, बिल्कुल वेरी सही नाइस। आंसर आपने दिया है। अगर और स्पेसिफिक हम मांगे कि क्या टाइटल है, किसी को याद है? यस, प्रियंका चोपड़ा का है, बिल्कुल सही आपने बताया। तो वील वेट मोर। यस, डार्लिंग। तो डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, रोको ना रोको ना। तो ये जो गाना है ये एक रशियन फोक सॉन्ग की मेलोडी पे आधारित है, ऑलमोस्ट एज इट इज, बट विच ऑल्सो विल यू नो गेट्स अस टू अ वेरी स्ट्रेंज टैंजेंट जो है कॉपीराइट, कि फोक म्यूजिक पे हमारे पास कोई कॉपीराइट होती नहीं है, क्योंकि वो इतने सालों से पहले चला आ रहा है, उसकी पे कोई कॉपीराइट कभी थी ही नहीं। वो एक सांस्कृतिक धरोहर है। तो
लोग फोक म्यूजिक को उठाते हैं, उसको रीअप्रोप्रिएट करते हैं एंड देन उस पे अपना गाना बना देते हैं. वन वेरी नाइस एग्जाम्पल इन बॉलीवुड जो इंडियन फोक म्यूजिक से ही लिया है, दैट कैन बी सीन इन एक मूवी आई थी एनिमल. मैं बट उसमें एक ना 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 ना. नाइस. ये गाना मेरे को इसका टाइटल याद नहीं आ रहा है, हाँ. बट आई होप आप सब लोगों ने सुना होगा. दिस इज ऑल्सो द सेम एग्जैक्ट मेलोडी, लैम्बोर्गिनी चलाई ओके. जाने ओ, बिकॉज इट इज अ फोक मेलोडी, तो कोई उसको क्लेम नहीं कर सकता है कि ये तो हमारी है. और साथ ही साथ सर मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये सबसे पहले, अगर आप सबने जगजीत सिंह जी का नाम सुना होगा, तो जगजीत सिंह जी और उनकी वाइफ चित्रा सिंह जी ने ये गाया था. वो ऐसे गाया था, कोठे ते आ माया, कोठे ते आ माया, मिलना ता मिल जाने, नहीं ता खसमानु खा माया. ऐसे था वो. तो ये फोक मेलोडीज हमारे पास कब से चली आ रही हैं एंड दे कैन सॉर्ट ऑफ बी यूज्ड एंड रीयूज, जिसकी वजह से डिफरेंट लीगल ट्रबल्स खड़े भी हो सकते हैं, स्पेशली विद ऑटोमेटिक कंटेंट आईडी. कि अब अगर मान लो कि आप ये फोक सॉन्ग गा के यूट्यूब पे डालें, तो मे बी यूट्यूब का कंटेंट आईडी विल थिंक कि अरे आपने एनिमल के गाने का कवर किया है, और वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दे. तो दिस क्रिएट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स कि कंपनीज ने वो म्यूजिक उठा लिया जिस पे कोई कॉपीराइट नहीं थी, बट बिकॉज उन्होंने म्यूजिक बना दिया तो अब उस म्यूजिक पे कॉपीराइट है. एंड ऑटोमेटिक कंटेंट आईडी सिस्टम्स जो हैं, अब वो आपके म्यूजिक को फ्लैग कर रहे हैं, जबकि आप तो फोक सॉन्ग ही गा रहे हो. एग्जैक्टली. तो बिल्कुल. बट खैर, इस टैंजेंट से वापस आते हैं. वी वर टॉकिंग अबाउट म्यूजिक बीइंग अ कल्चरल फिनोमेना. इंडिया से अगर बाहर भी जाएं तो यू कैन सी हाउ दिस हैज affected the rest of the world, especially again अगर आप बच्चों से कनेक्ट होना चाहते हैं तो I'll give you a very high probability कि 20 से 30% लोग K-pop जरूर सुनते होंगे आज की डेट में, और K-pop के बहुत बड़े फैंस होते हैं एंड लॉयल फैंस होते हैं. एंड इट्स जस्ट लाइक कोरियन पॉप म्यूजिक हैज टेकन ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि फ्रॉम अ कल्चरल पर्सपेक्टिव वो अपने कल्चर को शेयर भी कर रहे हैं. एट द सेम टाइम वो यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट एज ब्रांडिंग, जो कि हिंदुस्तानी म्यूजिक भी अपनी करता है, बॉलीवुड म्यूजिक भी अपनी करता है. बट आजकल क्या हो गया है कि बॉलीवुड म्यूजिक ज्यादातर अपनी ब्रांडिंग क्रिंज रील्स में कर रहा होता है, बट के पॉप हैज स्टार्टेड टू बी टेकन वेरी सीरियसली. सिमिलरली जापानीज जे रॉक बहुत ज्यादा, स्पेशली जो एनिमे से पॉप प्रोपोगेट हुआ है, बहुत ज्यादा म्यूजिक फैल चुका है. और इस तरीके से हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं जो म्यूजिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इनफैक्ट यस, तो प्रज्ञा मैम ने लिखा है कि कोरियन एंड जापानीज, जो कि हम जस्ट वही बात कर रहे हैं कि इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं कोरियन एंड जापानीज म्यूजिक कि वो अपने कल्चर को फैला रहे हैं, एंड इट इज मेकिंग पीपल इंटरेस्टेड इन नोइंग कि जापानीज कल्चर कैसा होता है, कोरियन कल्चर कैसा होता है, हम जानना चाहते हैं. A lot of the students on the sides as a hobby या semi seriously are going to, for example, Korean Cultural Center जाते हैं, वो कोरियन लैंग्वेज की क्लासेस ले रहे हैं. देयर आर लाइक नीश कम्युनिटीज जो बनी हुई हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे से कोरियन में बात करने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, अन्यंग हासेयो ऐसे करके. इनफैक्ट शिवालिका मैम, आई थिंक आपकी एक फ्रेंड है जो बहुत कोरियन में इंटरेस्टेड थी. हाँ, तो कोई ना कोई किसी ना किसी को जानता है दैट इज वेरी मच इनटू कोरियन और जापानीज म्यूजिक एंड कल्चर, एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ द रोल जो इस टाइप का म्यूजिक प्ले कर रहा है. हाँ, गंगम स्टाइल उस टाइम पे फेमस हुआ था जिस टाइम पे कोरियन बॉय बैंड्स का या आइडल ग्रुप्स का इन जनरल इतना उसमें वो नहीं बना था, स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं बना था.
इंडस्ट्री के ऊपर। बट अब आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। उससे पहले आप देखोगे कि बॉय बैंड्स तब भी थे, बट अमेरिकन से ज़्यादा देयर वर ब्रिटिश बॉय बैंड्स, और इसमें आप हिस्ट्री में बहुत पहले जा सकते हो। वन डायरेक्शन से शुरू करके आप ओके बीटल्स तक जा सकते हो, पिंक फ्लॉयड तक जा सकते हो। These British bands that were taking over the world with their unique sense of music, जो जिस टाइप का म्यूजिक सिमिलरली, नॉट सिमिलरली बट जिस टाइप का म्यूजिक अमेरिकन रॉक स्टार्स जस्ट प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहे थे, बिकॉज दे केम फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर। जो ब्रिटिश बैंड्स हैं, दे केम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, अ डिफरेंट कल्चर, एंड सो दैट मेक्स म्यूजिक अ वेरी वेरी स्पेसिफिक कल्चरल फिनोमेना, जो हर एक एक डायरेक्शन में जहां पे भी आप चले जाएंगे तो वो लाइक कुछ कोस की दूरी पे बदल जाएगा। आप दिल्ली से ही बाहर चले जाइए, थोड़ा सा नॉर्थ चले जाइए, लोग पंजाबी म्यूजिक सुनना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा साउथ चले जाइए, लोग हरियाणवी म्यूजिक सुनना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा ईस्ट चले जाइए तो लोग पहाड़ी म्यूजिक सुनना शुरू कर एंड देंगे। ऑल्सो बिहार आप गए तो हाँ, फिर भोजपुरी हाँ, मस्ट है। भोजपुरी साउथ यूपी भी एंड चले यूपी जाइए। हाँ, यूपी में एग्जैक्टली यूपी में अगर भी चले यूपी में जाएंगे तो जाएंगे आपको भोजपुरी म्यूजिक बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से उस कल्चर के साथ लोगों की स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटीज। ओके गुलाबी शरारा, यस, जिस ओके तरीके से वो हाँ पॉपुलर एग्जैक्टली हुआ, अम, एक ये अम, था ना कासे के थाई मन चांदी को सिक्को समथिंग लाइक ऐसा कुछ था हाँ, हाँ, है ना। मैं तेरा राजा तुम मेरा हुक्म कोई को आई डोंट नो ये कौन सा हाँ, हाँ, लैंग्वेज है बट बहुत सारे म्यूजिक अब आ रहे हैं। हाँ, ऐसे बहुत बहुत सारे म्यूजिक हैं जो पॉपुलर हो रहे हैं, एंड इट इज एनीवेज इफ contributing towards a global identity, एक शेयर्ड आइडेंटिटी, या ये बोल सकते हैं कल्चरल एक्सचेंज जो क्रिएट हो रहा है, विच इज एट द सेम टाइम गुड, बट उसके साथ कुछ सर्टेन, मैं ये नहीं बोलूंगा रिस्क्स हैं, बट एट द सेम टाइम मैं ये बोलूंगा कि देर आर सर्टेन things that we as teachers need to be careful about, कि people are very much tied to their cultural identities, और students especially, like आप किसी किसी पर्सन के पास जाओ जो सॉर्ट ऑफ लाइक 18 19 20 इयर्स का है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री में आ रखा है, आई वुड से फॉर अ नॉर्थ इंडियन पर्सन देयर इज अ 50-50 चांस दैट पर्सन वुड लिसन टू सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसे एग्जैक्टली तो इट इज बेस्ट कि people not hold very strong opinions, या not air those strong opinions, because then you will start offending a fan, let's say। और ऐसा नहीं है कि offend करने में कोई दिक्कत है, but at the same time as teachers हमारा काम ये है कि हम स्टूडेंट्स के साथ वो रेपो बनाने की कोशिश करें, जहाँ पे they get to trust us, and that will make us a confidant of sorts। तो people are very much tied to their cultural identities, और it will be nice कि आप जितने ज्यादा cultural identities से वाकिफ हैं उतना ज्यादा अच्छा होगा, especially considering like a university like शारदा यूनिवर्सिटी, जहाँ पे बहुत सारे different nationalities के लोग आते हैं, तो it's not only local cultural identities but international cultural identities as well, and that sort of gives a good icebreaker, at the very least a good icebreaker to get to know people कि oh अच्छा, I am interested in music, मेरे को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, I want to explore more music। क्या आप बता सकते हो कि आपकी कंट्री में क्या म्यूजिक पॉपुलर है? मैं उसको घर जाके सुनूंगा, मैं उसको घर जाके सुनूंगी, like sort of that। तो again that will bring us to a, a slightly different topic, but there was a lot that we had planned, and chat पे ही सही, but I am glad कि अब किसी तरीके का interaction आ रहा है, uh, which is like I am very thankful for। but the next topic was कि क्या आप किसी का म्यूजिक टेस्ट
जान के या पूछ के ये डिटेक्ट कर सकते हो कि क्या ये पर्सन मेंटली रिजिड है या नहीं, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू आस्क। बिल्कुल, जैसा कि अब जैसे मुझे शास्त्रीय संगीत पसंद है और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ख़्याल होते हैं, बड़ा ख़्याल एंड छोटा ख़्याल। और मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को बड़ा ख़्याल जो शास्त्रीय संगीत से नहीं जुड़ा हुआ है और जो जिनको समझ नहीं है, अगर मैं वो गाना तो कहेंगे अरे क्या ही गा रहे हैं। हम्म। क्योंकि वो बहुत ही एक 48 मात्रा में चलने वाली 48 मात्रा के ताल में बंधी हुई एक बंदिश मतलब ख्याल होती है ना? और जो छोटा ख्याल होता है वो द्रुत होता है, वो 3 ताल में होता है धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा। और जो एक बड़े ख्याल की बंदिश होती है वो अ, एक ताल में बंधी होती है जिसकी अगर आप इसको सुनेंगे तो धिन एक बोल के 4 मात्रे में हम गाते हैं, तो वो इतना स्लो होगा कि सब सोचेंगे कि अरे मतलब सो ही जाए, मतलब ऐसा हाँ, हाँ। ऐसा उनको फ़ील होगा कि वाओ मतलब या तो वो रिलैक्स होके फिर आराम ही करेंगे वो। और कुछ लोगों को लगेगा कि अरे कितना बोरिंग है ये। और यही मैं अगर एक भोजपुरी गा लूँ तो उसमें भोजपुरी में आप सब भी जानते होंगे कि वर्ड्स मतलब अगर उनके देखें तो बहुत ही वैसे रहते हैं, तो सब कहेंगे अरे यार किस किस किस्म का ये इंसान है। मतलब अगर आप उनको कहेंगे अरे इसकी मेंटालिटी तो कितनी बेकार है, ये तो भोजपुरी सुनता है। लेकिन मैं बात उधर म्यूज़िक की कर रही हूँ, लाइक वो जो म्यूज़िक बज रहा है, वो इतना अ, पावरफुल है। हाँ। पावरफुल एग्जैक्टली पावरफुल है बहुत करेक्ट वर्ड है पावरफुल। क्योंकि वो बजते ही मतलब ऐसा मन करता है कि एकदम डांस ही कर ले, ऐसा लगता है मुझे। और यही आप गजल भी ले लीजिए, गजल में अगर आप गाते हैं तो उसमें इमोशंस मतलब आप जो कहना चाहते हैं वो अपने गजल गजल के माध्यम से आप उसको कह सकते हैं। वो एक इमोशन से पूरा भरा हुआ है। और यहीं आप अगर भजन ले लीजिए तो आप भगवान की उनकी उपासना करते हैं और उनको उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे मोड्स हो सकते हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये भी है कि किसको क्या ज़्यादा पसंद है। ये भी डिपेंड करता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो अभी शिवालिका मैम ने जिसका दरवाजा खोल दिया है वो ये है कि नॉट ओनली हम ये देख सकते हैं कि दूसरा इंसान जिस म्यूजिक को पसंद करता है उसके हिसाब से मेंटल रिजिडिटी की हम बाद में बात करेंगे, बट सॉर्ट ऑफ शिवालिका मैम ने पॉइंट आउट किया कि हर इंसान जब किसी की हॉबीज जानता है या म्यूजिकल टेस्ट जानता है, दे स्टार्ट टू कंस्ट्रक्ट अ पिक्चर एग्जैक्टली बिल्कुल। ऑफ द अदर पर्सन, जो अगेन प्रेजुडिस से भरी हो सकती है, which is something also we need to be careful about कि why is it कि you know भोजपुरी म्यूजिक अगर आप जानो कि कोई बहुत चाव से सुनता है तो बहुत सारे लोग उसको एक नेगेटिव पॉइंट की तरह देखते हैं, तो ऐसा सर्टेनली नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो उनका खुद का टेस्ट है, उनकी खुद की उन्हें वो पसंद आता है तो हम किसी के सॉन्ग का टेस्ट जान के उनको जज नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि वो उनका टेस्ट है। मुझे ज़्यादातर पसंद है क्लासिकल लाइक मैं सुनना पसंद करती हूँ लता मंगेशकर जी को, उनके पुराने सॉन्ग्स मुझे बहुत ही प्रभावित करते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके सॉन्ग्स। ऑल्दो मैं आज के सॉन्ग्स भी सुनती हूँ बट मुझे पता नहीं क्यों वो बात मुझे नहीं लगती क्योंकि और आजकल के जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं वो आज के सॉन्ग से कनेक्ट करते हैं। हाँ, अगर वही पुराना सॉन्ग अगर मैं नया करके रैप करके वो कर दूँ, तो वो बहुत अच्छे से बहुत जैसा कि आपने कहा चाव से गाएँगे। जैसे सजाऊँगा लुट कर भी तेरी, है ना? ये सॉन्ग जो है ये इसको अभी वो करके रीमेक करके एक रील्स में ला दिया गया है। और ये रील्स मतलब दिन में पचासों बार स्क्रॉल होती है। मुझे लगता है कि ये चलती है रील्स। तो पुराने सॉन्ग्स जितने भी हैं, उन्हें वो एक नया रूप देकर हाँ, सॉर्ट ऑफ परोसा जा जी सकता है। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ। जैसे प्रज्ञा मैम ने कहा है कि हार्ड मेटल के लिए यू नो शी फील्स ऑफुल लिसनिंग टू दिस, एंड दैट कैन बी ट्रू फॉर सम पीपल कि लोगों के बिकॉज म्यूजिक टेस्ट इतने ज्यादा पर्सनल होते हैं कि कोई और जो सुन रहा है मे बी आपको नहीं पसंद आए, या इनफैक्ट इट माइट बी फॉर एग्जाम्पल टू लाउड,
ठीक है, या बहुत ज्यादा चुभता हो कानों में, मे बी उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, एंड इट कैन ऑल्सो बी एन एक्वायर्ड टेस्ट फॉर सम पीपल। एट द सेम टाइम हम किसी का म्यूजिक टेस्ट जान के ये नहीं बोल सकते हैं कि ये किस तरीके का इंसान होता होगा या होना चाहिए, इवन दो दैट प्रेजुडिस स्टिल एग्जिस्ट्स। तो मैं वो फैक्ट पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ऐसा होता है, इन द आइडियल सेंस ऐसा नहीं होना चाहिए। कि जो लोग हार्ड मेटल सुनते हैं माइट नॉट बी कि वो किसी एक सर्टेन तरीके के या किसी पर्सनालिटी के लोग होते होंगे, बट एट द सेम टाइम मेंटल रिजिडिटी की जो मैं बात करना चाह रहा था, हम वहां पे पहुंच सकते हैं कि इट्स नॉट द म्यूजिक इटसेल्फ बट द एटीट्यूड टुवर्ड्स द म्यूजिक। कि मान लीजिए कि कोई बोले कि अरे हिप हॉप क्या है, हिप हॉप में तो हम मतलब ठीक है हम तो नहीं सुनेंगे। तो जो एक अनविलिंगनेस है, that can be thought of as a sign of being very rigid and set in your own ways, कि नहीं हमें तो यही पसंद है, हम यही करेंगे, हम कुछ और नहीं करेंगे, which can again be slightly problematic because हम as educators चाहते हैं कि हम continuously open minded रहें, हम अपने आप को upgrade करते रहें, हम latest trends के साथ अपकीप करते रहें, and that not only applies to music but like हर फील्ड में। तो इंजीनियरिंग की फील्ड में इफ समवन इज नॉट अप टू डेट विद व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, देयर वाज अ टाइम, एक छोटा सा एनेक्डोट अगर मैं आपको बताऊं, देयर वाज अ टाइम जहाँ पे हमारे पास लाइक आई वाज इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज बिफोर, बिकॉज आई एम लेट ब्लूमर इन म्यूजिक, मैंने काफी बाद में म्यूजिक शुरू किया, तो आई हैड डन माई बीटेक। एट द सेम टाइम अराउंड द सेम टाइम हमारे पास नोड जेएस जैसी टेक्नोलॉजीज इमर्ज होनी शुरू हो गई थी, बट द करिकुलम वाज स्टिल ओल्ड। तो कॉलेज का करिकुलम वाज नेवर एबल टू कीप अप with what was happening in the industry। और जब लोग इंडस्ट्री में जाते हैं it is the same thing again कि people have to spend time training you to undo the things that you have learned in college, which is the experience of many स्टूडेंट्स, और आप लोग सब स्टूडेंट्स रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं बात यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगी एंड आप अग्री करते होंगे कि यस फंडामेंटल्स आर एसेंशियल, बट एट द सेम टाइम a lot of companies are still spending a lot of money just to undo what they have learned in college, चाहे वो मैनेजमेंट कोर्सेज में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी कोर्सेज में हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। द सेम थिंग हैपेंस इज एंड इट ओनली माइट बी बिकॉज कि हम लोग शायद इतने ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं है जितना हम लोगों को होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू अडॉप्टिंग। तो दूर की बात है, अडॉप्टिंग की बात नहीं करते हैं, बट विद रिगार्ड्स टू जस्ट बीइंग इन टच विद व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। तो ऐसा डेफिनेटली पॉसिबल है कि अगर जस्ट हम इन टच भी रहें, एंड म्यूजिक तो सिर्फ एक एग्जांपल है, द एंटायर पॉइंट इज कि हाउ कैन वी ग्रो एज पीपल, एंड म्यूजिक की हमारी लाइफ में वो काम करने के लिए कहाँ जगह है, एंड दैट इज द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस सेशन कि म्यूजिक को हम अपनी लाइफ में किस तरीके से जोड़ सकते हैं इन अ वे दैट हेल्प्स अस ग्रो एज अ पर्सन। तो I feel like the only attitude that might be associated with mental rigidity that you can get to know by knowing someone's music taste is their you know जो एक हट होती है कि हम तो नहीं सुनेंगे, and it's not like you have tried it and gave it a chance and it is not for you, ठीक है, you might listen to it sometime as like second hand smoke, कभी जैसे उड़ के आ जाती है। तो उस तरीके से वी सॉर्ट ऑफ फील कि अगर रिजिडिटी हो तो उसमें दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है म्यूजिक एंड मेडिटेशन। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि डेली हम
एक ओम की साउंड क्या रोज सुनने का प्रयास कर सकते हैं? आप इट्स बिकॉज म्यूजिक एंड मेडिटेशन आप बहुत ही शांत फील करेंगे, बहुत ही काम फील करेंगे और मुझे लगता है कि सोचने समझने की शक्ति भी आपकी थोड़ी बढ़ जाती है और मेडिटेशन तो हमारी लाइफ का पार्ट होना ही चाहिए और हम इसमें ओमकार भी कर सकते हैं एंड ओम और भी साथ ही साथ बहुत सारी म्यूजिक हैं जो कि इस चीज में काम कर सकती हैं। सी मेडिटेशन का जो पॉइंट है दैट इज अगेन आई एम हार्डली लाइक डूइंग एनीथिंग हियर, आई एम ओनली प्रीचिंग टू द क्वायर। यहाँ पे सब लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं मेडिटेशन इज वेरी स्पेसिफिक टू ईच एंड एवरी पर्सन। किसी को जिम जाने में मेडिटेशन फील होती है, Exactly. किसी को यू नो म्यूजिक सुनने में मेडिटेशन फील होती है, किसी को म्यूजिक करने में मेडिटेशन फील होती है। बट एट द सेम टाइम किसी भी चीज पे अगर आप ध्यान लगा पा रहे हो, इफ यू कैन बी माइंडफुल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग कि अरे ये कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, तो एट द सेम टाइम आपने एक डिटेल पे ध्यान दिया जो आप पहले नहीं दे रहे थे। यू आर जस्ट लेटिंग द म्यूजिक हैपन कि बैकग्राउंड में कुछ बज रहा है, बट जैसे ही आपने ध्यान दिया अरे वाह ये सितार बड़ा अच्छा लग रहा है, इट कुड बी अरे ये ड्रम्स बड़े अच्छे हैं, ये बीट बड़ी अच्छी है। तो ऑल ऑफ दीज लिटिल लिटिल थिंग्स दैट वी पे अटेंशन टू, उनकी वजह से बहुत ज्यादा आई वुड से कि हमारे अंदर चेंज आ सकता है। इट विल बी वेरी ग्रेजुअल बट नेवरदीलेस एक चेंज आ सकता है जहां पे वी कैन बिकम मोर ब्रॉडर एंड मोर परसेप्टिव टू द वर्ल्ड अराउंड अस कि चल क्या रहा है। अगर हम बस उस पे ध्यान ही देना शुरू करते हैं, अगेन म्यूजिक उनमें से एक जरिया है। बिल्कुल लोग नेचर की साइट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स नोटिस करते हैं, एंड सिमिलरली म्यूजिक के साथ भी हो सकता है। एक कोट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा बिफोर वी रैप अप दिस सेशन। साउंड्स एग्जिस्ट इन ऑल ऑफ नेचर, म्यूजिक एग्जिस्ट्स ओनली इन ह्यूमंस। तो ये हमारा परसेप्शन है। म्यूजिक एक साइको अकूस्टिक फिनोमिना है। म्यूजिक नहीं एग्जिस्ट करता है नेचर में, हम नेचर में म्यूजिक ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल। ह्यूमंस आर दी ओनली पीपल जो आर दी ओनली स्पीशीज जो म्यूजिक एक्चुअली में कर पाती हैं। चिड़िया के लिए चिड़िया इज नॉट मेकिंग म्यूजिक, उसके लिए इट्स अ कॉल। एंड यू नो सिमिलरली जो सारी साउंड्स सुनाई देती हैं, वी हैव नो अगेन दिस गोज वेरी डीप इनटू द रेल्म ऑफ फिलोसफी एज वेल, बट हम कह नहीं सकते कि क्या बाकी के एनिमल्स म्यूजिक को उस तरीके से परसीव करते हैं या जिस तरीके से हमने किया है। जैसे मैम ने मेरे को एक एग्जांपल बताया था कि आई थिंक सारे गामा पधा निसा जो है वो सारे एनिमल्स, हाँ बिल्कुल, तो हर एक एनिमल की साउंड के बेसिस पे बने हैं। उस तरीके से ह्यूमंस आर दी ओनली वन जो म्यूजिक में पार्टेक करते हैं। बाकी सारी एनिमल स्पीशीज के लिए इट माइट एज वेल जस्ट बी साउंड। तो अगर हम इस चीज को ध्यान रखें एंड अपना नजरिया थोड़ा सा म्यूजिक की तरफ बदलें, मे बी दैट विल हेल्प अस कहीं ना कहीं कि हमारा लाइफ की तरफ नजरिया थोड़ा सा बदल जाएगा। बस ध्यान लगाने की बात है। एंड अगेन ध्यान बहुत फॉर्म्स में लगाया जा सकता है, बट यहाँ पे हमें बस ध्यान से सुनना है कि हो क्या रहा है, एंड दैट माइट हेल्प अस विद द स्टूडेंट्स एज वेल with their cultural identities, knowing their cultural identities, giving them support, या just building a bridge कि आप उन्हें जान पाओ। तो वो जो ब्रिज है, अगर वो ब्रिज हम बना लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, एंड उसमें हम म्यूजिक को यूज कर सकते हैं। सो दैट विल बी द एंड ऑफ आवर सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। क्या आप सब में से इफ एनीवन वांट्स टू, हाँ, कोई क्वेश्चंस अगर किसी के पास हो तो, कोई क्वेश्चंस या कुछ गाना चाहें या आप कुछ भी पूछना चाहें प्लीज। Hello. yes, Yeah, am I audible? yes, yes. Yeah. Sir, my question is when what is the way to energize your mind
during during or after the workload, means when you came from the office, which type of music to listen to energize your mind and keep calm for some time? ओके इसमें मैं जो आपको रेकमेंड करूंगा दैट इज कि आप कोई भी ऐसा म्यूजिक सुन सकते हैं जिस म्यूजिक को आप कंफर्ट फील करें, बिकॉज म्यूजिक इज सच अ पर्सनल चॉइस। तो मैं कोई आपको म्यूजिक रेकमेंड करूं, जनरली रूल ऑफ थंब होता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूजिक होगा, वो आपको थोड़ा सा काम डाउन करेगा, थोड़ा सा सीरीन टाइप का म्यूजिक होगा, वो आपको काम डाउन करेगा। बट दैट माइट नॉट बी व्हाट यू वांट। कुछ लोग होते हैं कि ऑफिस के बाद जिम जाते हैं एंड देन टू रिलीव दैट स्ट्रेस वो कान में लाइक वाला म्यूजिक सुन रहे होंगे, एंड देन वो एनर्जी एंड वो अग्रेशन जो है वो मशीन्स पे स्पेंड कर रहे होंगे, एंड दैट इज कम्प्लीटली ओके एंड कम्प्लीटली वायबल टू डू दैट। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपको किस तरीके का म्यूजिक पसंद है। मे बी यू वांट टू लिसन टू सम रिलैक्सिंग पियानो म्यूजिक जो आपने घर पे आके बैकग्राउंड में लगा दिया। इट माइट बी पॉसिबल कि आप हार्ड रॉक सुने ताकि आपको वो चैनल मिले उन इमोशंस के लिए या उस स्ट्रेस के लिए एक्चुअली में। तो completely depends on what you want to do, but there are rules of thumb ki generally softer music will make you more calmer if that's what you want. सर मैं बिल्कुल मतलब सेटिस्फाइड हुआ आपके आंसर से। मतलब मेरा जो म्यूजिक है हार्ड रॉक सुनने से मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मेरा जो स्टिमुलेशन है ना वो डिफरेंट होता है, बाकी म्यूजिक से वैसा फील नहीं आता मुझे। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। Any other questions? I have one question. Yes. Can music give us that spiritual state? Like, can we go into spiritual state and meditate from music? Some frequencies or hertz, something. मैं यहाँ पे दो पार्ट्स में आपको आंसर देना चाहूंगा, which is कि there is a lot of pseudoscience that surrounds music as well, and at the same time science like अगर साइंटिफिक बेसिस पे हम चलें तो म्यूजिक डज अ लॉट टू आवर ब्रेन, to our emotions, to our psychology, whether or not there is a frequency affecting the person basis or not, वो अभी तक conclusively established नहीं हो पाया है। तो like some people say कि 432 hertz ये वो, that has not been established right now, but we cannot say कि म्यूजिक हमें अफेक्ट नहीं करता है। तो गोइंग ऑन दैट बेसिस म्यूजिक कैन वेरी वेल बी अ टूल जिसको यूज करके आप स्पिरिचुअल स्टेट्स में जा सकते हैं, जिसको यूज करके आप मेडिटेटिव स्टेट्स में जा सकते हैं, एंड इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू want to do with it. There are certain kinds of music, जैसे binaural music हो गया, तो स्टार्टिंग में अगर आप हेडफोन्स में सुनेंगे उससे आपको एक्चुअली में चक्कर से आएंगे, बट अगर आप बाइनॉरल म्यूजिक सुनेंगे दैट माइट हेल्प यू या माइट हेल्प सम पीपल टू गेट इनटू अ मोर मेडिटेटिव स्टेट। कुछ लोगों को स्पिरिचुअलिटी क्लासिकल म्यूजिक में मिलती है, जैसे शिवालिका मैम अगर आप इस पे थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहें तो। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर मैं स्पिरिचुअल अगर भजन भी सुनूं बहुत आप कह सकते हैं उसमें, तो मुझे वो बहुत कनेक्ट करता है, मुझे बहुत, और मुझे गजल बहुत पसंद है, वो मुझे बहुत काम करता है, मुझे लगता है बहुत ही रिलैक्सेशन, और इसमें बहुत ही आराम से बहुत ही प्यार से स्वर लगाए जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और वो बहुत ही आपके इमोशन को बहुत ही कनेक्ट करता है। तो मुझे पर्सनली गजल और ऐसी चीजें मतलब पसंद है, मुझे इस प्रकार की गायकी मुझे पसंद है जी। तो इन सारी चीजों को यूज करके आप डेफिनेटली एक मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं। एट द सेम टाइम there might be certain limitations as well, because क्या होता है कि म्यूजिक में कभी-कभी अगर आपने जैसे बात करनी शुरू करी म्यूजिक के बारे में, या if you got like too into it for example, then क्या होगा कि आप मेडिटेशन करने से ज्यादा आप म्यूजिक सुनने लग जाएंगे, and that but बात यह है कि फॉर मेनी म्यूजिशियंस वो अपने आप में साधना है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी इन इटसेल्फ। लोगों को जैसे जैसे म्यूजिक के अंदर वो घुसते जाते हैं उनको ज्यादा चीजें सुनाई देने लग जाती हैं, एंड वो दैट बिकम्स अ मेडिटेशन इन इटसेल्फ, वो अध्ययन का एक टॉपिक बन जाता है।
जिसमें आप और डीपर 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 जा सकते हैं। इसलिए आप किन्हीं भी बड़े गुरुओं को सुनेंगे, उस्तादों को सुनेंगे, उनके इंटरव्यूज देखेंगे, दे विल ऑलवेज से कि अरे हमें तो अभी क्या ही आता है, हमारी तो म्यूजिक में मतलब सातों जन्मों में भी नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा जानते हैं, विच इज द डनिंग क्रूगर इफेक्ट, कि वो इतना ज्यादा जानते हैं कि उन्हें पता है कि वो कितना ज्यादा नहीं जानते हैं। तो तो वो वाली चीज हो जाती है। बट डेफिनेटली एनी पर्सन कैन यूज म्यूजिक एज अ मेडिटेटिव गाइड या एज अ वे टू गेट मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी। वो भक्ति संगीत के साथ भी हो सकता है वो, लेकिन हेवी मेटल के साथ भी हो सकता है। एनी एंड इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन आप किस तरीके के म्यूजिक को सुनना चाहेंगे। जितना ज्यादा म्यूजिक वो खींचता जाएगा, उतना ज्यादा मे बी आप उसमें और ज्यादा एकत्रित हो सकते हैं अपने ध्यान को एक जगह रख के। और ऐसे ही मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, तानसेन जी का अगर आपने नाम सुना होगा तो वो आई थिंक उनकी कुछ अवस्था ऐसी हो गई थी, मतलब तो उनकी बेटी ने राग दीप गाया था। वो इतना इमोशन, इतना डेडिकेशन से उन्होंने गाया कि वो दीप जल गया। मतलब आप समझ रहे हैं सर, वो कितना फोकस्ड होके, कितना रिलैक्स, और मतलब कितना उस पे उन्होंने ध्यान लगा के वो गाया होगा। तो और शायद फिर ऐसा भी था कि शायद तानसेन जी उठ गए, ऐसा भी था। हाँ। और ऐसे ही किसी ने मेघ मल्हार गाया, इतने तो वर्षा हो गई। वर्षा हो गई, एग्जैक्टली। एंड ओपेरा सिंगिंग में भी मुझे लगता है वो कांच का ग्लास टूटने का भी, हाँ एग्जैक्टली। तो कितना फोकस्ड होते हैं, कितना ध्यान लगा के वो सारी चीजें बारीकियों को वो समझ के, और मतलब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक, इस काइंड ऑफ मेडिटेशन, वो मेडिटेशन ही हो गया बिल्कुल उस प्रकार से। जी। आई होप मैम आपको आंसर सफिशिएंट लगा होगा। Yes, thank you. एनी अदर क्वेश्चंस? सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। ये क्वेश्चन नहीं तो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा फ्रेंड से जो हम साथ में बैठ के काम करते हैं, मेरा नेबरिंग फ्रेंड, वो क्या करता है ना, वो म्यूजिक सुन सुन करके वो कुछ टाइप कर लेता है और कुछ राइटिंग भी कर लेता है। वो चीज मेरा साथ नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर मैं म्यूजिक सुनूं और कुछ लिखूं और कुछ टाइप करूं, मेरा माइंड म्यूजिक से डाइवर्ट होता है। बट उसी फ्रेंड को कैसा हेल्प कर लेता है कि वो मतलब वो टाइपिंग भी कर लेता है, कुछ लिख लेता है, कैसा मतलब डिफरेंट, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट्स बिकम a habit or kind of it's the music enhance the writing skill or typing skills, or it's make a concentration to him to work continuously. ऐसा कैसे सर होता है, थोड़ा उसमें थोड़ा कुछ बोल सकते हैं क्या? दिस इज डेफिनेटली समथिंग जो आपकी ऑब्जर्वेशन से मैं अग्री करूंगा। इनफैक्ट मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे साथ ये बहुत ज्यादा होता है। मैं जब म्यूजिक सुन रहा होता हूँ तो मैं मल्टीटास्क नहीं कर सकता हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड लिसनिंग टू म्यूजिक वेरी हेल्पफुल फॉर स्टडीइंग, तो बैकग्राउंड में लो फाई म्यूजिक लगा दिया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बट बीइंग समवन विद अ प्रोफेशन इन म्यूजिक, तो देन जब भी मैं म्यूजिक सुन रहा होता हूँ तो मेरा सारा ध्यान म्यूजिक पे चला जाता है एंड मैं कुछ और काम नहीं कर पाता हूँ। तो आई हैव टू लाइक सॉर्ट ऑफ एलोकेट टाइम फॉर इट, कि जब मैं म्यूजिक सुनूंगा तो मैं सिर्फ म्यूजिक ही सुनूंगा। और चीजों के साथ मल्टीटास्क कर सकता हूँ। अगर बैकग्राउंड में कोई पॉडकास्ट चल रही है, देन आई एम एबल टू डू एवरीथिंग दैट आई वांट टू डू। वो मल्टीटास्किंग देन हो जाती है, बट म्यूजिक के साथ नहीं हो पाती है। And everyone might be different. Some people might be more inclined towards already noticing कि म्यूजिक में क्या क्या चल रहा है, तो वो बिकॉज उनका ध्यान ऑलरेडी सारा का सारा म्यूजिक पे फोकस्ड है, तो वो और चीजों पे शायद ध्यान ना दे पाए और चीजें ना कर पाए। एंड इट हैपेंस, इट्स नॉर्मल। और वो एक वेरिएशन है जो हर इंसान में पाया जाता है। Sir, can I make an announcement? So those Yes, who have questions, you can stay back. The others can join the Google link because sir is waiting. Actually, what happened was this Google Zoom meet was not. He was not able to. Our sir from the Buddhist Tibetan teacher from the
Buddhist monastery. He is not able to join here. So we need to join the Google link that I have sent in the group. And those who have questions, they can stay and finish their questions and then join. And others can start joining. I have sent the link in the group. Okay, thank you, ma'am. This concludes our session for today. Again, as ma'am said, agar if anyone wants to stay back and ask further questions, they can. But I guess sir is also waiting, so we can end the session right now as well. Okay, thank you so much for joining us. In fact, we would like to thank you. It was such a beautiful session, and our questions are unending, and we have so many things to discuss with you all. Maybe one day you can come to our university and we can have further discussion. And yes, surely. Balika ma'am, thank you. And our esteemed Western music teacher, Umesh Bhatt sir, thank you for your inspiring presentations. Your deep expertise and passion for music have offered us unique, captivating perspectives, truly enriching our appreciation and understanding of the art form. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. So I request all of you to please join the Google link, which has been sent in the group. Can you kindly join so that... Ma'am, we leave this group. Yeah, you leave this and then join that. Okay. Tashi sir, sir, can you make me the co-host so that I can keep admitting people if anything is required? Myself and Rukmani madam, there are 3 people. So you just need to, click on our photo and make us the co-host. Rukmani and Radhika, Rukmani. On the screen, there are these 4 dots on the right side end. You just need to click on them and then make us co-host. Yeah, in the screen where you see all of us. So in the screen, you can click on those 3 dots that you see and then make us the co-host or whatever the terminology, admin or host, whatever it says. No, not that, sir. Then maybe... Okay, sir, it's okay. You can start your session. I think people are automatically getting admitted, so there seems to be no problem. Let us just wait for everybody to come in. Let me just see how many people are there attending this. I'll just coordinate if anybody is in the other meeting. I will send them here. I request all of you to join the Google Meet if you can hear me. Vipin sir, can you hear me? Yes. Sir, just wait for a minute till I come back because I want to make sure everybody joins. Yeah. So, Vipin sir, are you there? Anjana ma'am, are you there?